Good morning. Today our last topic from this chapter, that is adjustment or change in profit sharing ratio among the existing partners. The last topic in this chapter is adjustment of capital. This is most important topic which will occur in the next chapters also, admission, retirement, death and death also. What is the adjustment of capital? When we are going to prepare the partners capital account, we have to make all the posting. At the last, additional information will be given. The capital of all the partners will be adjusted in new profit sharing ratio. It means if I'm saying A and B are partners, they are having the capital 10,000, and now they are going to change their new profit sharing ratio 2:1. In this way, we have to merge this 20,000. This 20,000 will be divided in new ratio 2:1, means 2/3 and 1/3. From this point of view, we will find out the new capital of the partners, and this new capital will be written in partners capital account in debit side at last to balance CD. And after that, you will find out the difference in each and average partners columns. If the credit side is more, then you will write to cash or bank or to partners current account, means partners invested more and the extra money will be refunded. If the debit balance is more, it means there is need to bring some money that is short. So that partner will bring some money and you will make the posting in credit side by cash or by partner's current account, whose debit balance is more. So this is called adjustment of capital. We can do these two entries. We will use these two entries for adjusting shortage of capital. Means if credit side is more, then the partner have to bring some money, or this shortage will be adjusted through the current accounts. Then we'll make the entry bank account or debit or concerned partners current account debit to concerned partners capital account. If there is surplus of capital, that surplus amount will be refunded to the partners. It means the entry will be concerned partners capital account debit to bank or concerned partners current account. So this will be the entry. Means जब फर्म के पास पैसा आएगा तो एंट्री होगी बैंक टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जब कोई पार्टनर्स को हमें पैसा वापस करना है तो हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. वी कैन understand this topic with the help of an illustration or example which is given in T.S. Grewal. We will take this unsolved question. Here is a question in T.S. Grewal, question number 28, adjustment of capital. Here the question is given, that is Ram, Mohan, Sohan and Hari were partners in a firm sharing profit in ratio 4:3 on 1st April 2016. Their balance sheet was as follows. Balance sheet on Ram, Mohan, Sohan and Hari on 1st April 2016. In liability side, their capitals are given. Ram capital 4 lakh, Mohan capital 4 lakh 50,000, Sohan 2 lakh 50,000, Hari 2 lakhs. And workman compensation reserve is given 1 lakh 20,000. So total is 14 lakhs 20,000. In asset size, two assets are given, fixed assets 9 lakhs and current assets 5 lakhs 20,000. And these additional informations are given. From the above data, the partner decided to share the future profits in the ratio of 1:3:4. So this is new ratio, and the old ratio is 4:3:1. New ratio is 1:3:4. For the purpose of goodwill of the firm was valued at rupees 1,80,000. This is a new goodwill. The partners also agreed for the following. First, the claim for workman compensation has been estimated at rupees 1,50,000. Reserve was 1,20,000 and claim is 1,50,000. Means there will be 30,000 extra burden on the firm that will be compensated through the revaluation account by making it debit. Adjust the capital of the partner. This is important line which you should consider. Adjust the capital of the partners according to new profit sharing ratio by opening partners current account. They are saying कैश और बैंक के थ्रू एडजस्टमेंट नहीं करनी है. सरप्लस डेफिसिट की जो भी सरप्लस डेफिसिट होगा उसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट. नाउ लेट्स सी हाउ विल सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट the step 1. You have to write the old ratio and new ratio because new ratio is also given. Old ratio 4:3:1, new ratio 1:3:4. First of all, we have to find out the sacrificing ratio in order to distribute the goodwill. So sacrificing ratio
formula is old share minus new share. Ram old share is 4/10, new share 1/10. Ram Mohan 3/10 minus 2/10, Sohan 2/10 minus 3/10, and Hari 110 minus 410. We will solve it and find out कि Ram is sacrificing 3/10 share, Mohan sacrificing 110 share, Sohan gain is 110 and Hari gain is 3/10. After that we have to calculate the new profit sharing ratio. If it is not given, then we have to find out the new profit sharing ratio, but in this question new ratio is given. New ratio will be used for adjustment of capital and sacrificing ratio will be used for adjustment of goodwill, new goodwill. So second step, we have to prepare the revaluation account. There is only one adjustment, that is the claim. Workman compensation claim is rupees 1,50,000, where is reserve is 1,20,000. We have already discussed about it. Whenever claim is more than reserve, then excess claim will be adjusted through debiting this extra amount in revaluation accounts, because this is the extra loss. So 1,20,000 reserve है, workman compensation claim 1,50,000 है, difference 30,000 about the claim means extra loss, and this will be compensated by the revaluation account by making debit posting to workman compensation claim 30,000. This is a loss, this will be distributed. रिवैल्यूएशन में जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटना है, याद रखना है. सो ये लॉस 30,000 है, ये ओल्ड पार्टनर्स में राम मोहन सोहन हरी सब में ओल्ड रेशो मीन्स 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. राम का लॉस 12,000, फिर 9,000, 6,000 और 3,000. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तो एडजस्टमेंट्स गिवन है. सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो अपनी बैलेंस पोस्ट करेंगे जो बैलेंस शीट में गिवन है. बाय बैलेंस BD 4 लाख राम का है, मोहन का 4,50,000 गिवन है बैलेंस शीट में, सोहन का है 2,50,000 और हरी का है 2 लाख. सबसे पहले ये पोस्टिंग करनी है. उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया इससे पहले, उसमें लॉस आया तो उस लॉस की पोस्टिंग कर देंगे. टू रिवैल्यूएशन, राम में 12,000, मोहन का 9,000, सोहन 6,000, हरी का 3,000. अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे. हमें गुडविल दी हुई थी और गुडविल के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है, तो हम वर्किंग नोट्स तैयार करेंगे. अब एडजस्टमेंट ऑफ न्यू गुडविल विच इज़ गिवन 1,80,000. 1,80,000 में सबका गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है. हम निकाल चुके हैं सैक्रिफाइसिंग रेशोज़. राम ने सेक्रीफाइस किया 310, मोहन सेक्रीफाइस 110, सोहन 110 और हरी 310. सोहन और हरी गेन कर रहे हैं, राम मोहन सेक्रीफाइस कर रहे हैं. अब अमाउंट कैसे निकालेंगे? इस गिवन गुडविल को उनके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर है. सो क्योंकि राम मोहन ने सेक्रीफाइसिंग किया है तो सेक्रीफाइसिंग अमाउंट आएगा 310 इंटू 1,80,000. राम का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट आया 54,000, मोहन का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट आएगा 18,000. इस तरह से सोहन और हरी गेन कर रहे हैं, उनके गेनिंग शेयर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल से. तो सोहन का गेनिंग अमाउंट आया 18,000 और हरी का गेनिंग अमाउंट आएगा 54,000. यहाँ पे अब इसकी हेल्प से हम एक एंट्री बनाएंगे जो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस था इसलिए एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्योंकि गेनर भी दो हैं और सेक्रीफाइजर भी दो हैं. गेनर हैं सोहन और हरी. सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट 54,000. सेक्रीफाइजर दो हैं राम और मोहन. टू राम कैपिटल अकाउंट 54,000, टू मोहन कैपिटल अकाउंट 18,000. तो एक ये जनरल एंट्री बन गई जिसको इमीडिएटली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे. सोहन को 18,000 का लॉस डेबिट करना है और मोहन को 18,000 से क्रेडिट करना है, तो वी कैन मेक एडजस्टमेंट एंट्री टू मोहन. सोहन 18,000 बाय सोहन, मोहन के कॉलम में 18,000. ऐसे ही 54,000 हरी के अकाउंट में डेबिट करना है टू मोहन करके. हरी के अकाउंट में टू राम करेंगे, टू राम करके हरी के अकाउंट में डेबिट कर देंगे 54,000 और बाय हरी करके राम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 54,000. तो इस तरह से एक कंप्लीट एंट्री हो जाएगी हमारी गुडविल की. उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है जो भी कैपिटल है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना है. अब वो न्यू कैपिटल फर्म की कई बार दी होती है, यहाँ नहीं दी तो हम कैसे निकालेंगे? ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें सारी पोस्टिंग हो चुकी है. अब इसमें इसके बैलेंसेस निकालने होते हैं. हमने लिखना है टू बैलेंस CD नॉर्मल, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, लेकिन वो बैलेंस हमें सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना लिख के हमें वर्किंग नोट में निकालना है.
सो क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स, राम प्लस मोहन प्लस सोहन प्लस हरी, चारों पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। क्लोजिंग कैपिटल जैसे राम का है 4,42,000, कैसे आया 4,42,000? राम का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,54,000, इसमें से हम 12,000 और 12,000 माइनस कर देंगे। तो जब 4,54,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,42,000। इसी तरह से हम 1 बाई 1 सभी पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, लेकिन उसको वर्किंग नोट में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर अभी एडजस्टमेंट करनी है हमें। तो इस तरह से हमने चारों पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया आफ्टर एडजस्टमेंट्स। राम का आया 4,42,000, मोहन का है 4,59,000, सोहन 2,26,000, हरी का है 1,43,000। चारों को टोटल कर देंगे, ये आएगी टोटल न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, डेट इज़ 12,70,000। हमें क्वेश्चन में कहा गया द एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो ये कैपिटल आई है अब इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो गिवन है क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4। तो 12,70,000 को 1, 2, 3, 4 में डिवाइड करेंगे तो राम की न्यू कैपिटल आएगी 1,27,000, मोहन की न्यू कैपिटल है 2,54,000, सोहन की है 3,81,000 और हरी की है 5,08,000। इस न्यू कैपिटल को इमीडिएटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देना क्रेडिट में, डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी। जैसे न्यू कैपिटल आएगी इमीडिएटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में पोस्ट कर देना सबसे लास्ट में, टू बैलेंस सीडी करके। राम की 1,27,000, मोहन 2,54,000, सोहन 3,81,000 और हरी 5,08,000। अब कुछ नहीं करना है, सीधा आप इसको क्लोज कर दोगे जैसे नॉर्मल अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले राम का क्लोज करेंगे हम। राम का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है 4,54,000 और हमने पहले डिस्कस किया था एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। राम का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होने मीन्स अभी राम को 1,27,000 इन्वेस्ट करना है रियल्टी में, उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, जितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया उसको वापस कर देंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि जो वापस करना है, जो एडजस्टमेंट करना है वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है, इसलिए हम यहाँ पे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख रहे हैं। राम के कॉलम में 3,15,000। अगर कुछ नहीं कैश कहा जाता तो हम लिखते टू कैश या टू बैंक, लेकिन करंट अकाउंट बोला है तो हम लिख देंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऐसे ही मोहन का भी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, जबकि उसको लगाना चाहिए 2,54,000, उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है 4,50,000 प्लस 18,000 मीन्स 4,68,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। डिफरेंस आया है 2,05,000 का, ये वापस कर देंगे। कैश बैंक के थ्रू नहीं करना है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू करना है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मोहन में लिख देंगे 2,05,000। सोहन का डेबिट साइड का ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, जबकि उसने इन्वेस्ट किया 2,50,000 प्लस 2,50,000, जबकि उसको इन्वेस्ट करना है 3,81,000। सोहन का बैलेंस डेबिट का ज़्यादा है, मीन्स उसे और पैसा लेके आना है, लेकिन कैश बैंक की फॉर्म में नहीं लेके आना। पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट चल रही है बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। सोहन अकाउंट में आएगा बैलेंस 1,55,000। फिर हरी का डिफरेंस निकालेंगे। हरी का भी डेबिट का ज़्यादा बैलेंस आ रहा है 5,65,000 और डिफरेंस आया 3,65,000, डैट विल बी रिटर्न बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस तरह से राम और मोहन को रिफ़ंड करना है पैसा, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू। सोहन और हरी पैसा लेके आएंगे लेकिन थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैश दिया होता तो फिर कैश लिखते या बैंक लिखते, लेकिन यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो रही है। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में हमारी जो न्यू कैपिटल निकाली थी हमने वही लिखनी है। राम न्यू कैपिटल, मोहन, सोहन एंड हरी न्यू कैपिटल एज इट इज़ उसको पेस्ट कर देना है। टोटल आ गया है कैपिटल का 12,70,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमें दिया हुआ था, लेटेस्ट लिखना होगा एडजस्टमेंट वाला 1,50,000। फिक्स एसेट्स एज इट इज़ 9 लाख, करंट एसेट्स एज इट इज़ 5,20,000। अब बात आई क्योंकि करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट हुई है तो दो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, पेमेंट शो कर रहा था, जिनको हमें पेमेंट करना है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स की तरह हैं। सो हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट राम और मोहन, जिनको हमें रिफंड करना है पैसा 3,15,000, 2,05,000, टोटल 5,20,000। दो पार्टनर्स ऐसे हैं जो पैसा लेके आने वाले हैं, वो हमारे लिए एसेट्स हैं, करंट एसेट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट। सोहन 1,55,000, हरी 3,65,000, इनको हम टोटल करके लिखेंगे। अमाउंट आया 5,20,000। तो 5,20,000 एसेट्स बनी है, 5,20,000 लायबिलिटीज़ बनी है। टोटल आ गया बैलेंस शीट का 19,40,000। इसी केस में ये एडजस्टमेंट अगर कैश फॉर्म में होती तो हम क्या करते, हमारी एंट्रीज़ क्या होती। उस केस में हमारी एंट्री जब पैसा आ रहा है तो जैसे
राम को हमें रिफ़ंड करना है, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 3,15,000। मोहन को भी रिफ़ंड करना था, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सोहन पैसा लेके आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल 1,55,000। और हरी भी कैश लेके आएगा, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल 3,65,000। इन केस अगर ये बोला जाता है कि एडजस्टमेंट जो है कैश की फॉर्म में करनी है, डेफिसिट और सरप्लस की एडजस्टमेंट कैश फॉर्म में करनी है, तो ये एंट्रीज हमारी बनती। अभी हमने क्या चेंज किया है, जहाँ पे भी कैश है वहाँ करंट अकाउंट डाला है, लेकिन कैश होता तो कैश लिख देते, करंट है तो करंट। डिफरेंस क्या आएगा, इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, एक तो एंट्रीज में चेंज आएगा, दूसरा इम्पैक्ट जब भी कैश आएगा तो फिर बैलेंस शीट में उसमें कैश और बैंक बैलेंस इफेक्ट होगा जो हम एंट्री में यूज़ कर रहे हैं। कैश तो कैश बैलेंस, बैंक और बैंक बैलेंस, हमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट में टू बैलेंस BD लिखना है, अगर पुरानी बैलेंस शीट में दिया नहीं दिया इस क्वेश्चन में। अब जो पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे उनको डेबिट में लिखना है, टू सोहन टू हरी 155,000 365,000। जिनको हम पैसा वापस करने वाले हैं, बाय राम 3,15,000, मोहन 2,05,000। बैलेंस निकालेंगे, बाई चांस यहाँ पे बैलेंस ज़ीरो आ रहा है, नील आ रहा है, इसलिए बैलेंस शीट में कहीं भी कैश और बैंक का बैलेंस नहीं दिख रहा है। करंट अकाउंट तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर ये कैश के थ्रू एडजस्टमेंट होता तो यहाँ कोई कैश बैलेंस नहीं दिखाई देता बैलेंस शीट में। तो अगर हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना है तो फिर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करंट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे बैलेंस शीट में देखना है। जिनका बैलेंस क्रेडिट आएगा उनको लायबिलिटी साइड में लिखना है, अगर करंट अकाउंट डेबिट आ रहा है तो उनको एसेट साइड में लिखना है। और अगर यही एडजस्टमेंट कैश फॉर्म में करनी होती तो फिर हमें ये एंट्रीज बनानी होती है, बैंक अकाउंट बनाना होता है, उसका बैलेंस निकालना होता है, उसके बैलेंस को हम बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते, फिर करंट अकाउंट नहीं आते। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको दी हो सकती है एग्ज़ाम में, जिसके थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ सकते हैं। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना सीखा है। वंस हैव अगेन अ लुक ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला, फिर रीवैल्यूएशन बनाया, रीवैल्यूएशन के लॉस को ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशो में डिवाइड किया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें सबसे पहले हमने बैलेंस BD पोस्ट किया, फिर रीवैल्यूएशन का लॉस पोस्ट किया, फिर गुडविल की एडजस्टमेंट की है, गुडविल का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट और गेनिंग अमाउंट निकाला है, उसकी एक एंट्री कर दी, उस एंट्री को पोस्ट कर दिया। फिर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना था, उसके लिए हमने सारी पोस्टिंग करने के बाद एज यूजुअल टू बैलेंस CD निकालते हैं जैसे वैसे ही वो बैलेंस निकाल के सीधा वर्किंग नोट में लिखा, उसको टोटल किया, उस टोटल को न्यू रेशो में डिवाइड करके सभी पार्टनर्स की न्यू कैपिटल फाइंड आउट की। और जैसे ही न्यू कैपिटल फाइंड आउट की, दो जगह पोस्टिंग करनी है, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस CD लिख देना है, साथ में बैलेंस शीट में इमीडिएटली कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देनी है। दो जगह पोस्टिंग हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद हम इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टोटल करके क्लोज करेंगे। और टोटल में देखना है कि अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड में मतलब हम उसे पैसा वापस करने वाले हैं। अब वो देखना है कि पैसा, क्वेश्चन कह रहा है कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, तो लिख दिया हमने टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैश बैंक कहता है तो लिख देते टू कैश और टू बैंक, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे भी पड़ेगा। और ऐसे ही अगर किसी का डेबिट साइड से बैलेंस ज़्यादा है तो फिर हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय कैश, मीन्स हम वो पैसा लेके आएगा। बाय कैश नहीं लिखना है, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट है तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। अब जो ये करंट अकाउंट अगर आए हैं, यूज़ हो रहे हैं करंट अकाउंट या बैंक अकाउंट, उसको बैलेंस शीट में पोस्टिंग भी करनी है। अब बैलेंस शीट में कैसे करना है, जो क्रेडिट साइड ज़्यादा थे उनको लायबिलिटीज़ मानना है क्योंकि पेमेंट करनी है हमें उन लोगों की, तो वो लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे। जो पार्टनर्स पैसा लेके आने वाले हैं वो हमारी एसेट्स हैं, उनको उनके करंट अकाउंट के बैलेंस को या डिफरेंस जो हमने निकाला है उसको एसेट साइड में लिख देंगे। अगर यही एडजस्टमेंट कैश फॉर्म में करनी होती है तो ये एंट्रीज बनती है हमारी, हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है इन एंट्रीज की पोस्टिंग करके, फिर बैलेंस निकालते हैं और उस बैलेंस को फिर यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश और बैंक बैलेंस के आगे लिख देते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है।